Hello everyone, how are you? So in our last lecture of some basic concepts of chemistry, we discuss about some physical quantities and we start discussing about law of chemical composition. We already discussed the two laws, law of conservation of mass and law of constant proportion. So today we are going to begin our lecture with law of multiple proportion. Third law of chemical composition, law of multiple proportion. This law was proposed by John Dalton. What this law states? This law states, definition लिखिए, when two elements A and B combine together to form more than one compound. When two elements A and B combine together to form more than one compound, then the mass of one of the elements, then the mass of A, then the masses of A which combine separately with a fixed mass of B, bears a simple ratio. What this law states, for example, we have two elements A and B, two elements carbon and oxygen. Now next statement is they combine together to form more than one compound. For example, these two combine and form carbon monoxide and form carbon dioxide. Two elements combine together and form more than one elements. For example, carbon oxygen combine and form carbon monoxide and carbon dioxide. Then the mass of A or B, whatever you want to take, which combines separately with a fixed mass of B. So here the masses are carbon is in 12 and oxygen is in 16 by mass. Atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is 16. In this compound, atomic mass of carbon 12 and atomic mass of oxygen 32. Mass of A which combines separately with a fixed mass of B. So here the fixed mass is of carbon and the masses of the second element bears a simple ratio. Simply means this oxygen and this one oxygen bears a simple ratio 16:32, which means 1:2. A simple ratio came. This is the definition of multiple proportion. When two elements combine together and form two or more than two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide, यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा और दूसरे एलिमेंट का मास एक सिंपल रेशियो को बियर करेगा. क्लियर है? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नोट कीजिए इसको. ओके, लेट्स स्टार्ट. First question is, the law of multiple proportion is illustrated by the pair of compound.
the law of multiple proportion is illustrated by the pair of compound. कुछ कंपाउंड्स के पेयर आपको गिवन है एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि इन पेयर्स में से कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा. फर्स्ट पेयर NaCl and NaBr. सेकेंड पेयर H2O and D2O. थर्ड पेयर SO2 and SO3. and fourth pair MgOH twice and MgO. क्लियर. इन चारों में से आपको कोई ऑप्शन मुझे चूज करके बताना है जो मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लॉ को फॉलो करेगा. The next question of law of multiple proportion is our question start. 10 gram of lead Pb represents lead. On heating gives 10.78 gram of litharge. लेड ऑक्साइड. फर्स्ट डाटा इज गिवन कि 10 ग्राम लेड को जब आपने हीट किया तो आपको इतना अमाउंट लेथरेज का मिला. सेकेंड वन 9.775 ग्राम ऑफ रेड लेड. रेड लेड का फॉर्मूला Pb3O4. इतना अमाउंट रेड लेड का लिया हमने. यील्डेड on strong heating, yielded on strong heating 9.545 gram of litharge. इतना अमाउंट रेड का लिया, उसको हीट किया, हमें इतना अमाउंट लिथरेज का मिल गया. लास्ट वन 4. डाटा 4.87 ग्राम ऑफ PbO2 gave on heating इस कंपाउंड को जब हमने हीट किया तो इसने हमें 4.545 ग्राम ऑफ लेथरेज दिया. With using this following data, show that these results illustrate law of multiple proportion. So that these results illustrate the law of multiple proportion. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी है. बट क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए. 10 ग्राम लेड को हीट किया, इतना ग्राम लेथरेज मिला. सेकेंड डाटा में this much amount of red lead on heating gives this much amount of lethridge. In the third data 4.87 gram of PbO2 gives us 4.545 gram of lead oxide. इस डाटा को यूज करके हमें ये बताना है कि ये जो डाटा है फॉलोइंग डाटा ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करेगा या नहीं करेगा. शो दैट करेगा ऑब्वियस. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन. डाटा आपने नोट कर लिया सभी ने. नाउ यूजिंग द फर्स्ट पॉइंट
10 gram of lead on heating gives 10.78 gram of literature. From the first data, simply we are able to understand this thing. This is our literature. This literature contains 10 gram of lead. So the left amount is of oxygen, 0.78 gram oxygen. This gram of lead and this gram of oxygen. From here we easily calculate 10 gram of lead reacts with 0.78 gram of oxygen. इतने ग्राम लेड ने इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सो 1 ग्राम लेड रिएक्ट्स विद 0.78 by 10 gram of oxygen. Answer came 0.078 gram of oxygen. फर्स्ट सॉल्यूशन, ये चीज समझ है, पीबीओ के अंदर 10 ग्राम लेड था, इतना ग्राम ऑक्सीजन था, 10 ग्राम लेड इस इतने अमाउंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो 1 ग्राम लेड कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा. सो आवर फर्स्ट डाटा इज 0.078 gram of, we are talking about oxygen. From the first data we get this. What is our second data? फर्स्ट डाटा क्लियर है सभी को. इसके अंदर 10 ग्राम लेड था, इतना ग्राम ऑक्सीजन था, उसका कॉम्बिनेशन देख लिया. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट को यूज करना है. सो इन अ बी पार्ट वी हैव रेड लेड, कितना ग्राम गिवन है इसका, 9.775 ग्राम. On heating gives us literature amount is 95545 gram. So first data से हम एक चीज लिख सकते हैं, that is 10.78 gram of literature contains 10 gram of lead. Clear है चीज? 10.78 gram of literature contains 10 gram of lead. So 1 gram contains 10 by 10.78 gram of lead. And in the very last हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना लेड है. 9.545 gram of lead oxide contains 10 divided by 10.78 multiply 9.545 gram of lead. lead का अमाउंट मिल गया हमें, and the answer is 8.854 lead. 8.854 gram lead. सिंपली हमने दो डाटा यूज किया. दिस वन इज अ डाटा फ्रॉम फर्स्ट लाइन और फर्स्ट डाटा फर्स्ट ऑप्शन ए. सेकेंडली हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितना लेड है. जितना लेड यहाँ था वो लेड उधर ट्रांसफर हुआ. सो ये चीज क्लियर है. अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं. 10 ग्राम ऑफ लेड वी हैव. इस अमाउंट में से इतना ग्राम हमारे पास लेड है, तो बचा हुआ अमाउंट किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का. नेक्स्ट इज in this amount if 8.854 gram lead, then oxygen कितना है हमारे पास यहाँ 0.921 gram oxygen. प्लस कर लीजिए, आपको सेम आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे हमने लेड फाइंड आउट किया, वो लेड हमें यहीं से ट्रांसफर हुआ. सो इतना ग्राम लेड है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है. नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में निकाला था 8.854 ग्राम लेड reacts with 0.921 gram oxygen. So 1 gram lead reacts with
0.921 divided by 8.854 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.11 ग्राम ऑक्सीजन। सो सेकेंड ऑप्शन से हमें ऑक्सीजन का कितना अमाउंट मिला? 0.11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? सेम लाइंस पे हम ऑप्शन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ आया? सो थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड डाटा क्या गिवन है? PbO2 को हीट करने पे हमें, PbO2 को हीट करने पे हमें PbO मिला। PbO2 कितना गिवन है? 4.87 ग्राम एंड दिस गिव्स अस 5.545 ग्राम लेड ऑक्साइड। इस डाटा को और फर्स्ट इक्वेशन के डाटा को फिर से यूज कीजिए। 10.78 ग्राम ऑफ PbO contains 10 gram of lead. So 1 gram contains 10 divided by 10 by 78 and 4.545 gram of lead oxide contains 4.585 gram. And on solving we get कितना ग्राम है लेड का यहाँ पे? 4.261 ग्राम, 4.216 ग्राम ऑफ लेड। लेड की अमाउंट आ गई, जैसे बी पार्ट में निकाला था वैसे सी पार्ट में लेड की अमाउंट निकाल लेंगे आप सभी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ लेड। तो यहाँ पे इतना लेड है, ऑक्सीजन कितना बचेगा वो फाइंड आउट करना है। So in this compound 4.216 gram lead is present. So rest amount is 0.65 gram oxygen. जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में निकाला वैसे ही हम यहाँ पे भी 1 ग्राम ऑफ लेड के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो निकाल लेंगे। So 4.216 gram lead reacts with 0.65 gram oxygen. So 1 gram lead needed 0.65 divided by 4.216 gram oxygen and we get our answer 0.155 gram of oxygen. ठीक है, अब हमने तीनों ऑप्शंस में क्या किया है, हमारे पास एक कंपाउंड था जो कि बना हुआ था लेड से और ऑक्सीजन से। तीनों तरफ हमने लेड के अमाउंट को 1 फिक्स कर दिया। लास्ट ऑप्शन में भी 1 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, फर्स्ट में भी 1 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए इतना, 1 को रिएक्ट करने के लिए इतना। और मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने यही बोला है कि किसी एक एलिमेंट के अमाउंट को हम सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। सो हमारे पास 3 अमाउंट आ गए हैं ऑक्सीजन के। उसके बाद हम उनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 0.078 ratio 0.11 ratio 0.155 gram and this one bears a simple ratio, so law of multiple proportion is proved. Hence law of multiple proportion is proved. नोट कीजिए। क्लियर है यहां तक? Our next law is law of reciprocal proportion. Next law is law of reciprocal proportion. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? रिच्टर ने। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
proportion. This law was proposed by Richter. तो इस लॉ ने क्या कहा, इस लॉ का एक एग्जांपल देखो. सबसे पहले इस लॉ ने बोला आपके पास दो एलिमेंट है, एक है कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स वाई जेड, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया. दिस लॉ स्टेट कंबाइन विद अ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे. इसने यहाँ पे H2S बनाया और यहाँ पे SO2 बनाया. सो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने क्या बोला कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इन दो कंपाउंड्स में जो रेशियो रहेगा वो इनके इस कंपाउंड के रेशियो के या तो बराबर रहेगा या सिंपल रेशियो रहेगा. दोबारा सुनिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए. तीसरे एलिमेंट का मास उन्होंने रखा कांस्टेंट. सल्फर हेयर इज 32 एंड हेयर इज आल्सो 32. तीसरे एलिमेंट का मास उन्होंने कांस्टेंट रखा. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज 2 here and oxygen is 32. So if we try to find their ratio is 1:16. ये रेशियो इनके इस कंपाउंड के रेशियो के या तो बराबर रहेगा या उसका एक सिंपल मल्टीपल रहेगा. फॉर एग्जांपल 2:16, 1:8. अगर हम 1:8 को 1:16 को कंपेयर करते हैं, वी गेट 1:2, जो कि एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है. सो डेफिनेशन लिखिए इस लॉ की. द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C. आपके पास दो एलिमेंट है A और B, उनके मासेस का रेशियो जो कि अलग अलग जुड़ के किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं is either the same or simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other. A and B combine directly with each other. स्टेटमेंट समझ आई इस लॉ की. इसने कहा कि दो एलिमेंट है A और B, वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं. तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, तो इनके मासेस का रेशियो या तो इक्वल जाएगा या फिर किसी सिंपल मल्टीपल का इक्वल रहेगा. The ratio of masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same. This ratio 1:8 or 1:16 is either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. नोट कीजिए इसको. So numerical is given. numerical कुछ इस तरीके से है. In PCl3 22.57% phosphorus is present. 22.57% phosphorus is
present. In phosphine 91.18% phosphorus is present, and in HCl 97.23% क्लोरीन इज प्रेजेंट. ये 3 डाटा आपको गिवन है और इन 3 डाटा को यूज करके बोला गया है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव कीजिए. तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, क्या हो रहा है, आपके 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जो कि फास्फोरस के साथ सेपरेटली कंबाइन करके एलिमेंट्स बना रहे हैं PH3 PCl3 और साथ में कंबाइन करके HCl बना रहे हैं. दिस इज आवर गिवन डाटा. सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट PCl3 में टोटल परसेंट 100 ग्राम, इन PCl3 22.57 ग्राम फास्फोरस. सो बचा हुआ अमाउंट किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, 77.43 ग्राम क्लोरीन. इतने ग्राम फास्फोरस को इतने ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है. सो 1 ग्राम फास्फोरस कितने ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. फास्फोरस के अमाउंट को हमें सेम रखना है विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C. सो दिस केम्स 3.43 ग्राम ऑफ क्लोरीन. 3.43 ग्राम ऑफ क्लोरीन. फर्स्ट डाटा क्लियर. सेकेंड डाटा क्या कहता है, फोस्फीन में 91.18% इन PH3 91.18 ग्राम फास्फोरस है. तो बचा हुआ अमाउंट किसका होगा, हाइड्रोजन का, 8.82 ग्राम हाइड्रोजन. सो 1 ग्राम फास्फोरस को कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए, कितना अमाउंट नीडेड होगा, 0.0967 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. अब हमने थर्ड एलिमेंट के मास को क्या कर दिया, कांस्टेंट. यहाँ पे भी 1 ग्राम, यहाँ पे भी 1 ग्राम. उसके बाद हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो देखना है. सो हियर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन का अमाउंट है 0.0967, रेशियो 3.43. दिस रेशियो केम्स 1:35.47. एक रेशियो कैलकुलेट कर लिया जब हाइड्रोजन और क्लोरीन किसी तीसरे कंपाउंड के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं. इन द लास्ट वन HCl, नोट कर लीजिए बेटा इसको. इन द लास्ट कंपाउंड HCl में 97.28% क्लोरीन गिवन है. एड 97.28 ग्राम क्लोरीन इज प्रेजेंट. तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2.77 ग्राम हाइड्रोजन. दोनों का रेशियो निकाल लो, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का. 2.77 रेशियो 97.28. दिस केम्स 1:35.10. So the ratio of these two is almost equal. Clear? आज हम यहीं तक करेंगे. Next we are going to discuss in our next lecture. पढ़ के आइए यहाँ तक.